back to my YouTube channel. This is my 6th lecture on differential equation, and today I'll be teaching you guys what is reducible to exact differential equation form. So let's start. So in reducible to exact differential form, there are 3 factors to be noted down. Okay, actually 4 actually. What are the factors? If this is the equation, and this equation is homogeneous. Okay, if this is the equation and this equation is homogeneous and not exact, means I will just partially differentiate m with respect to y and I'll partially differentiate n with respect to x, and we are seeing that both are not equal, so we will say that it is not exact. So in this case, what we will do, we will find the integrating factor. We will find the integrating factor equals to 1 upon mx plus ny. So in this case, the plus is written over here. This plus will only be written when this particular equation is homogeneous. And now what is homogeneous? I haven't taught you guys what is homogeneous differential equation yet. In my next lecture, I will be teaching you what is homogeneous differential equation. But try to understand, if this equation is homogeneous and it is not exact, then our integrating factor is this 1 upon mx plus ny, and then we will multiply this integrating factor with the differential equation and then we will solve it. Okay, now in second case, if this is the equation and it is not homogeneous and as well as not exact, as you can see del m by del y not equals to del m by del x, then what we will do, we will take the integrating factor as 1 upon mx minus ny. Now what is the difference? Here it was plus addition and here it is subtraction, when it is homogeneous and when it is not homogeneous. Okay, so this was the 2 cases. When the particular equation is homogeneous, then we will take integrating factor as 1 upon mx plus ny, and as well as when the equation is not homogeneous, then we will take the integrating factor as 1 upon mx minus ny. So these are the cases. So now we will take some extra case, special case. If m is greater than n in the given equation, if m is greater than n, so we can write 1 upon n into del n by del y minus del n by del x equals to fx, and this, the value of fx, okay, we will integrate it and we will write it upon e. So that will be our integrating factor. So integrating factor equals to e to the power integration of fx dx. ओके, सो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा कब? जब हमारा इक्वेशन में m बड़ा होगा n से, will be greater than n. If n is greater than m, then what we will do? We will, देखो ना, अब जाहिर सी बात है ना, we all know that बड़ा चीज से हम लोग छोटे को माइनस कर सकते हैं ना, तो वही किया है. अगर m बड़ा है तो फिर हम लोग m को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे और n को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे और del m माइनस del n करेंगे. क्यों? क्योंकि m बड़ा है यहाँ पे, है कि नहीं, और यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे n बड़ा है. सो हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन m जो छोटा है उससे हम डिवाइड करेंगे. ठीक है, यहाँ पे n छोटा है उससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे m छोटा है उससे डिवाइड करेंगे, और माइनस बड़े से छोटे को माइनस करेंगे. ओके, सो इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग fy के साथ डिनोट करेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ fy dy. सो students, this was the 4 cases of reducible to differential equation form. We will take each example, we will take one example for each of the cases. Okay, so and we will try to understand what is going on. So thank you very much. So let's start with example number 1. So guys, I have taken one example over here. So guys, I have taken one example over here. Let's solve this example. Okay, so example में क्या बोल रहे हैं, x square y dx minus x cube plus y cube dy equals to 0. So यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं m बराबर x square y हो रहा है और n बराबर माइनस x क्यूब प्लस y क्यूब हो रहा है. सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं. दैट वाज आवर फर्स्ट थिंग टू डू, राइट. सो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे पहले
डेल एम बाय डेल वाई। सो डेल एम बाय डेल वाई कब कैसे करेंगे फिर, y 1 हो जाएगा है कि नहीं, क्योंकि हम लोग y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और डेल n अपॉन डेल x इक्वल्स टू x के रेस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे -3x स्क्वायर हो जाएगा। सो एज यू कैन सी बोथ आर नॉट इक्वल, सिंस डेल m बाय डेल y नॉट इक्वल्स टू डेल n बाय डेल x, यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज नॉट एग्जैक्ट। लेकिन दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन, राइट, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 + 1 3 होता है, और यहाँ पे 3 3 है। सो ये पूरा इक्वेशन क्या है, होमोजेनियस है। सो एज यू कैन सी, सो यहाँ पे होमोजेनियस के लिए आई टोल्ड यू दैट क्या करना पड़ेगा हम लोग को करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, दैट इज mx प्लस my। व्हाट इज m ये है, और इसका x इंटू कर देंगे, मतलब x³ y, प्लस व्हाट इज n ये है, और इसका y इंटू कर देंगे, मतलब -x³ y माइनस y4। ओके, ये कट जाएगा, -y4। दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ व्हाट वी विल do, now we will multiply the integrating factor with the given differential equation. I'll just take this equation as 1. So यहाँ पे plenty of space है, by multiplying integrating factor with okay, so -1 upon y4 into x² y dx माइनस, ओके यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, y4 x³ प्लस y³ dy इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये और यहाँ पे कट हो जाएगा, सो dx प्लस x³ प्लस y³ अपॉन y4 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पे। ओके, सो अब यहाँ पे हमारा m और n हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, वेट अ मिनट। सो यहाँ पे माइनस को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, x² अपॉन y³ dx माइनस x³ अपॉन y4 प्लस 1 upon y dy इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। अब यहाँ से फिर m और n का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट हम लोग ने पहले से यहाँ पे m और n डिनोट कर दिया था। सो वापस से m नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक यूनिक एक आइडेंटिफिकेशन के लिए m डैश दे देंगे। यहाँ पे m डैश इक्वल्स टू x² अपॉन y³ एंड n dash equals to minus x³ y4 plus 1y। ओके, सो ये हमारा m और n का वैल्यू आ जाएगा। अब नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट पार्शियली डिफरेंशिएट दिस टू। ओके, ऊपर बहुत प्लेंटी ऑफ स्पेस है, यहाँ पे मैं स्पेस को यूटिलाइज कर देता हूँ। सो व्हाट वी विल डू, वी विल पार्शियली डिफरेंशिएट इट। सो del m by del y equals to, as you can see y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, so y ऊपर जाएगा -3, so -3 हो जाएगा यहाँ पे, -3 y -4 x² और x² by 3 y4, ये हम लोग
लिख सकते हैं, राइट? नहीं सॉरी, ये हम लोग लिख सकते हैं। सो उसी प्रकार डेल एन डैश अपॉन डेल वाई क्या होगा, ये पर्टिकुलर इक्वेशन। सो ये ऊपर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, सो x के रिस्पेक्ट में होगा मतलब ये तो जीरो हो जाएगा फुल, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, ये 3 एग्जैक्ट नाउ। ओके, सो व्हाट वी विल डू अगेन, वी विल सॉल्व लाइक वी यूज्ड टू सॉल्व इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो व्हाट वी विल डू नाउ, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज एग्जैक्ट। सो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग p ले लेंगे फिर वापस से, p इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ n डैश dx। हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, रिमेंबर? सो व्हाट इज p, सो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो p इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन y क्यूब dx, p इक्वल्स टू 1 अपॉन y क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, p इक्वल्स टू x क्यूब अपॉन 3y क्यूब प्लस c। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा p का वैल्यू हो जाएगा। सेकेंड स्टेप इज दैट, सेकेंड स्टेप क्या करते थे हम लोग, सेकेंड स्टेप वी यूज्ड टू डू n माइनस डेल p अपॉन डेल y, याद है? सो व्हाट इज n, n ये फुल इक्वेशन है, माइनस x क्यूब y4 माइनस 1 अपॉन y माइनस, अब डेल p अपॉन डेल y, ये जो p है, p को हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। सो ये y ऊपर जाएगा मतलब y टू द पावर -3 होगा, -3 आगे आएगा, 3 3 कट जाएगा, कट जाने के बाद -3 -1 -4 हो जाएगा। सो फिर लिख सकते हैं माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, सो x क्यूब अपॉन y4। सो ये और ये कट गया, -1 अपॉन y4। एनी डाउट्स? आई थिंक सो कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। लास्ट स्टेप यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे कर लेते हैं। द थर्ड स्टेप इज दैट हम लोग को ऐड करना है, दैट्स ऑल। p प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस डेल p अपॉन डेल y dy इक्वल्स टू c। सो व्हाट इज p? p इज दिस x क्यूब अपॉन 3y क्यूब प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस y सॉरी माइनस y इक्वल्स टू c, dy इक्वल्स टू c। ओके, सो x क्यूब बाय 3y क्यूब माइनस log y इक्वल्स टू c। सो दिस इज आवर final solution of the particular differential equation. I hope you have understand this example. Let's move on to the next example where we will take an example of not homogeneous not exact differential equation. And we'll so guys, I have taken one more example over here. Let's solve this example. So example says 1 minus yx into y dx plus 1 plus xy into x dy. So यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगेन n का वैल्यू निकालो, 1 माइनस वाई एक्स इंटू वाई, और n का वैल्यू निकालो 1 प्लस एक्स वाई इंटू एक्स, राइट? सो यहाँ पे वैल्यू कितना निकल जाएगा, y माइनस वाई स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर वाई। सो अब क्या करना पड़ेगा हम लोग को पार्शियल डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डेल m अपॉन डेल y, 1 माइनस 2yx del n by del x equals to 1 plus 2xy. So we can see that यहाँ पे प्लस और माइनस का डिफरेंस आ जाता है। सो ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ। सो देयरफॉर del m अपॉन del y नॉट इक्वल्स टू del n अपॉन del x, इट इज नॉट एग्जैक्ट। अभी हम लोग को देखना पड़ेगा दैट दिस इज अन होमोजेनियस इक्वेशन और नॉट। सो देख लो यहाँ पे 1 और 2 और 1 3 है, और यहाँ पे सिर्फ 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। सो अगर होमोजेनियस होता सबका पावर इक्वल होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है। सो ये एक होमोजेनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ। सो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस केस में हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन
एम एक्स माइनस एन वाई, यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। सो एम क्या है, व्हाट इज एम, दिस, सो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन, व्हाट इज एन, ये है एन हमारा। सो यहाँ पे वाई के साथ इंटू करना पड़ेगा, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके। सो ये हो जाएगा। सो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या करना पड़ेगा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। बाय मल्टीप्लाइंग 1 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर टू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो मल्टीप्लाई करते हैं फिर। सो 1 बाय माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स dx प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर y dy इक्वल्स टू 0। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, y माइनस वाई स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ओके। सो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद अगर इसको अगर खोल देता हूँ, सो फिर ये कुछ ऐसा लिखेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 अपॉन, ये कट जाएगा, ये कटने से 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, राइट, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा dx प्लस, इसको भी मैं सेपरेट कर देता हूँ, ये कट जाएगा। सो 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपॉन वाई, सॉरी यहाँ पे dy होगा, dy हो जाएगा। सो यहाँ से हमारा ये पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग m का वैल्यू निकाल लेंगे। रिमेंबर m नहीं लिखेंगे, हम लोग को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा। सो m डैश लिखेंगे हम लोग, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 अपॉन एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ m एंड n डैश का वैल्यू होगा यहाँ पे 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई, ठीक है। सो ये m और n का वैल्यू निकल गया। नाउ व्हाट वी विल डू, विल पार्शियली डिफरेंशिएट इट, ओके। आई जस्ट रब, ये पार्ट को मैं रब कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। सो डेल एम बाय डेल वाई करते हैं, फिर क्या होगा, डेल एम बाय डेल वाई किया, ये पर्टिकुलर थिंग 0 हो जाएगा क्योंकि हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। प्लीज प्रैक्टिस करके आना पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो फिर 1 अपॉन एक्स निकल जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पे निकल जाएगा, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई होता है, ठीक है, लॉग वाई होता है। उसके बाद सेम करेंगे हम लोग इसका इंटीग्रेशन, डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये 0 हो जाएगा, 0 होने के बाद ये भी सेम वही हो जाएगा आंसर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग सॉरी वाई हो जाएगा, ठीक है। सो एज यू कैन सी बोथ आर इक्वल
so we can say that del n by del y equals to del n upon del x. Therefore it is exact. Now what we will do, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, it is exact. Now what we will do, we will just solve it जैसे हम लोग solve करते थे. p equals to integration of m dash dx. यहाँ पे m नहीं ले रहे क्योंकि हम लोग ने एक नया m यहाँ पे फाइंड आउट किया था, इसीलिए. सो इंटीग्रेशन ऑफ ये पर्टिकुलर थिंग, सो क्या होगा 1/x² y माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx के रिस्पेक्ट में निकालते हैं हम लोग, ठीक है. सो ये आगे चला जाएगा, लिसन, ये आगे जाएगा 1/y आगे जाएगा, x² ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा x² माइनस 2 हो जाएगा, प्लस होगा -1. सो ये हो जाएगा हमारा -1. यहाँ पे एक माइनस भी आएगा, ठीक है. और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस log x. तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा. p का वैल्यू है ये, दिस इज द वैल्यू ऑफ p. सेकंड इज व्हाट वी विल डू, n माइनस, यहाँ पे n माइनस del p बाय del y करेंगे हम लोग, ठीक है. सो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है 1/x y² प्लस 1/y माइनस, अभी जो p का वैल्यू है इसको हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y. सो ये तो 0 हो जाएगा हमारा, ये 0 है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो y ऊपर जाएगा, माइनस आगे आएगा, प्लस ये होगा, फिर माइनस ये होगा. सो x/y² माइनस माइनस प्लस होता है. ओके, सो हियर ये कट जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 1/y. अब हमारा फाइनल स्टेप क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेप यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, फाइनल स्टेप होगा p प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस del p अपॉन del y dy इक्वल्स टू 0. सो p क्या है, p का वैल्यू है ये माइनस yx 1/yx माइनस log x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये मतलब log, मैं डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं होगा, c होगा. तो यहाँ मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/y log y होता है, और मैं डायरेक्ट लिख दिया. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. I hope you like this example and understood this example. We'll take one more example. Okay, then we will wrap this topic. Thank you. So this is our final example. Let's solve this example. So example says that x² plus y² plus 1 dx minus 2xy dy equals to 0. So again यहाँ पे हम लोग m लिख लेते हैं, x² plus y² plus 1 और n लिख लेते हैं माइनस 2xy. ओके, सो यहाँ पे del m बाय del y निकाल देते हैं, ये 0 हो जाएगा, 2y हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे del n अपॉन del x निकाल देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे माइनस 2y हो जाएगा हमारा. सो एज यू कैन सी दैट बोथ आर नॉट इक्वल, so del m upon del y not equals to del n upon del x. Therefore it is not exact, ठीक है, it is not exact. लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं हमारा del m बड़ा है del n से, ठीक है, del n upon del y is greater than del n upon del x. so यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, fx equals to 1 upon, जो छोटा है उसको ऐसे लिखेंगे del m by del y माइनस del n upon del x, ठीक है, 1 upon माइनस 2xy into 2y माइनस माइनस प्लस 2y, so माइनस 2xy into 4y, ओके, y कट गया, 2 से 4 हो गया, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा माइनस 2 upon x, ठीक है. सो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा अभी हम लोग को, ये हमारा fx निकल गया. सो वी नो दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, इंटीग्रेशन ऑफ -2 upon x dx इक्वल्स टू -2 बाहर आ जाएगा,
सो हम लोग को पता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2 log x, ओके, माइनस 2 log x। सो क्या होगा, e और log कट जाएगा, माइनस 1/x स्क्वायर हमारा आंसर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से बाय मल्टीप्लाई करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फिर क्या होगा, सो माइनस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 2xy dy इक्वल्स टू 0, ओके, इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे m का वैल्यू क्या निकल जाएगा, m डैश का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये -1 को मैं उस साइड भेज दिया, ठीक है, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये m का वैल्यू आ जाएगा। और n का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे n का वैल्यू आ जाएगा सही है माइनस 2y अपॉन x, ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग को पता ही है यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, वैल्यू सेम इक्वल आना ही है। सो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग घर में ये ट्राई करना, ठीक है, इक्वल्स टू x, ठीक है, ये हो गया, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आई नो दैट इसका आंसर जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे वैल्यू इक्वल ही आएगा। सो मैं ये आप लोग के ऊपर छोड़ देता हूँ। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रब दिस पार्ट, आई विल जस्ट रब दिस पार्ट, ओके। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अगेन वही स्टेप्स, p का वैल्यू निकालेंगे, p इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ m डैश dx, इंटीग्रेशन ऑफ m क्या है, ये फुल 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। सो यहाँ पे x आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये, सो फिर क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर y स्क्वायर रहेगा, ये माइनस होगा और माइनस प्लस, सो y स्क्वायर अपॉन x माइनस x प्लस c, ओके। सो आई होप कुछ डाउट नहीं होगा इसमें। n माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई, सो n क्या है, n ये है माइनस 2y बाई एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई, ये 0 हो जाएगा, ओके। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, सो क्या होगा, 2y अपॉन x, ठीक है, और यहाँ पे माइनस था सॉरी, तो प्लस हो जाएगा, कट गया, 0 आ जाएगा। लास्ट एंड फाइनल स्टेप व्हाट विल डू, p प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस डेल p अपॉन डेल y dy इक्वल्स टू c। सो एज यू नो p का वैल्यू है ये x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन 0 है, 0 का इंटीग्रेशन हमेशा 0 ही होता है, तो हम लोग लिखने का जरूरत नहीं है। सो दिस इज आवर final solution of the given differential equation. I hope you like my content very well. If you like my content, please like, share and subscribe my YouTube channel. If I have made some mistakes in anywhere, please let me know in the comment box, and I will just try to improve myself. And as well as please share my channel to those students who need the concepts of higher mathematics, as I have